sir. Yes, sir. Yes. Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, sir. How are you? But I am also fine. This class today, we will solve the exercise 5.1 or 4.1. Yes, 4.1. In our last class, we started the multiplication chapter. That is the chapter number 4. So already we have gone through the theory part of the multiplication. Multiplication क्या है, कैसे concept में आया. This is a repeated for the same number. Let's say if you have to add 5 times 4, then what you can do? If you want to add 5 times, then what you can do? You can multiply 5 into 5. In the same way, let's say if you are having 20 rupees and there is a 5 notes of 20 rupees. Let's say if you are having a 5 notes of 20 rupees, then 20 rupees के 5 notes हैं, then what is the total amount? You can add 5 times 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. That will be the 100. Also, you can on the place of addition, you can multiply. आपको 5 बार ऐड करने के बजाय what you can do directly, you can multiply 20 by 5 because you have to add the same number. 20 को ही आपको 5 times ऐड करना है, तो 5 times ऐड ना करके आप 5 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 को. Then you will be getting the same number. What you are going to get by adding 5 times 20. So this is the concept of the multiplication. Already you all have read about the multiplication in your previous chapter. So today we are going to start the exercise 4.1. The first question is the estimate the product. It was given as a homework. Estimate करना आप लोगों को पता ही है, rounding करना, फिर उसको multiply करना. तो question number 1 to है. Question number 1 and 2. 4.1 का 1 and 2. I hope everybody can do. सीधा multiplication है. चले जाएंगे ना? Yes, sir. That is one problem. I'm getting noise from your side. अतुल यादव बेटा, मुझे आपको बाहर करना पड़ेगा लग रहा है. आवाज नहीं आनी चाहिए, अपना माइक बंद रखिए. अगर आपकी आवाज आए तो बात है, कुछ पूछा जाए आप बताएं तो ठीक है, बाहर की आवाज नहीं आनी चाहिए. Directly I'm moving on the question number 3. That is Rizwan and Kadri decide to buy hens. Each hens cost 458 rupees. Rizwan and Carrie decide means क्या होता है? डिसीजन लेना. क्या डिसीजन लेते हैं? टू बाय हैंस. बाय में खरीदना, हैंस को खरीदने का निर्णय लेते हैं. और एक हैन की कॉस्ट क्या है? एक हैन की कीमत क्या है? What the cost is given? 400. 4,508. 458. 4,000 भैया देखिए. 458. 458 रुपीज. लोगों 4,000 किसी ने बोल दिया. सर संजना. चलो संजना फिलहाल अब नेक्स्ट टाइम से सही बोलेंगी. Each hens cost 458 रुपीज. एक hen की ये 458 रुपीज. या कितने सारे hen की कॉस्ट है? सर वन. लेट्स से अभी आप समझाने दीजिए. अभी मैं पूछूंगा नहीं, कोई बताएगा नहीं. मैं ही स्वयं आपको समझाऊंगा. जब मैं नाम लेकर के पूछूंगा तब आपको बताना है. कहने का मतलब यह है कि 458 रुपीज केवल एक हैन की कॉस्ट है. अगर आपको 2 हैन खरीदना है तो 458 रुपीज एक हैन का, 458 रुपीज दूसरे हैन का. दोनों हैन का 458 देना पड़ेगा. अगर आपको 5 हैन खरीदते हैं तो एक हैन 458 रुपीज का है, तो पांचों के लिए 458. इसका 458, दूसरे का 458, तीसरे का 458, फोर्थ वाले हैन का, एंड 458 फॉर द फिफ्थ वन. ऑल्सो यू नीड टू पे. यानी पांचों को जब आप 458 पांचों को एक एक करके दिए तो उसको जोड़ेंगे कि टोटल मैंने कितना खर्चा किया. तो जोड़ने के बजाय अब यहाँ पे क्या 458 ही तो सभी को दिया जा रहा है, सेम नंबर है, उसी को तो ऐड करना है 5 टाइम्स.
So what you can do, you can multiply directly, you can multiply by 5 to the 458 and you would be getting the total cost of the 5 hens. तो देखिए फिलहाल आपके बुक में क्या है क्वेश्चन, इफ दे बाय 15 hens, it is not the 5 hens, 15 hens, 15 times 15 hens के लिए उनको पैसा देना है. If they buy 15 hens, how much money will they spend? Is it easy or not? अब बताइए आप लोग माइक ऑन करिए. If Sir, they buy easy 15 है. hens, what you can सर do? इजी. Easy है. Do one thing. Sir, If it is easy, then send me your answer in my chat box, everybody. Send me the answer of this question in my chat box, everybody. If they buy 15 hens, then how much cost they have to spend for the 15 hens? I need answer. I need the total cost in my chat box. Send me the answer, everybody. अभिनय पांडे बेटा आप भी मोर पे क्लिक करें. मोर के अंदर चैट ऑप्शन आएगा. चैट के अंदर आपका टाइप करने का ऑप्शन आएगा. टाइप में आप टोटल कॉस्ट बता दीजिए कि 15 हन का वो कितना पैसा देगा. आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 15 का टेबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली 15 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैंने बताया था 1-5 अलग अलग नहीं कर सकते, 1-5 अलग अलग से भी कर सकते हैं. अगर आपको 15 का टेबल आता है तो एक ही लाइन में आप पूरा डायरेक्टली आंसर ही लिख सकते हैं. 15 का टेबल वंस में पढ़िए, फिर टेंस में पढ़िए, फिर 100 में पढ़िए. 3 ही अंक है. चैट बॉक्स में भेजिए तुरंत डायरेक्टली आंसर. दीपक सिंह ने भेजा है, सभी को भेजा है, एवरीवन को भेजा है. आई कैन नॉट टेल दैट कि वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. You all need to send my chat box. सिर्फ आपको मुझे भेजना है, not to everyone. Not to everyone. Everyone जहाँ पे लिखा है, you have to click there and choose the Pradeep Pandey. Yes, Sanjana Paswan has sent. Let me check that whether she is correct or not. Yes, Sanjana Paswan, Simran Bharti, Shivangi Tripathi. 3 students have sent the correct answer. 3 students have sent the correct answer. Nana Bari is wrong. Nana Bari is wrong. Nana Bari don't know that how to get the answer for 15 hens. You all need to check 458 rupees is for the only one hen. और 2 hen का क्या होगा 458 मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 hen की कॉस्ट आ जाएगी. 10 hen की कॉस्ट क्या होगी 10 hens की कॉस्ट उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 15 hens की कॉस्ट क्या होगी 15 टाइम्स 458 आप ऐड करने के बजाय उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू वुड बी गेटिंग द आंसर. राजपाल योर आंसर इज आल्सो इनकरेक्ट, रॉन्ग है. आपने सभी को भेजा है बट योर आंसर इज रॉन्ग. आप कहाँ पे अपनी गलती किया आप स्वयं देखिए. नैना बारी योर आंसर इज रॉन्ग. दीपक सिंह आपका भी आंसर गलत है. शिखर वर्मा योर आंसर इज करेक्ट बट अंकित कुमार योर आंसर इज रॉन्ग बेटा. अंकित कुमार अब आपने क्या गलती किया है, कहाँ पे किया है, ध्यान से देखिए. आपने कहीं पे जल्दबाजी में आपने जो आंसर भेजा है वो गलत है. अंकित. साक्षी पासवान इज ऑल्सो करेक्ट. शिखर वर्मा इज ऑल्सो करेक्ट. अनुष्का यादव इज ऑल्सो करेक्ट. आदित्य सिंह इज ऑल्सो करेक्ट. मुस्कान का आंसर रॉन्ग है बेटा. मुस्कान एक hen की कॉस्ट 458 रुपीज है. 458 रुपीज है. तो बताइए 15 hen की कॉस्ट क्या होगी 458 से भी कम हो जाएगी, 218 हो जाएगी. ऐसे कैसे हो सकता है. ज्यादा लेंगे तो और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. आदित्य सिंह, साक्षी पासवान, शिखर वर्मा, अतुल यादव, अनुष्का यादव, साक्षी पासवान, शिखर वर्मा, शिवांगी त्रिपाठी, सिमरन भारती, संजना पासवान, इन लोगों ने सही आंसर भेजे हैं. अभिनय पांडे ने अभी तक होमवर्क अपना आंसर नहीं भेजा. बिमलेश ने नहीं भेजा. और कौन नहीं भेजा है. अभिनय पांडे ने भी वीडियो बंद कर रखा, नहीं भेजा है.
यशवर्धन ने भी नहीं हूं अपना अभी तक आंसर भेजा ना, ममता सुंदर ने भेजा। आप लोग भी सही से आंसर सभी को भेजिए। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी अब चैट ऑप्शन बंद करके अब नाउ कम ऑन द बोर्ड, लेट मी चेक। बेटा एक दो बच्चों ने आंसर गलत किया, 2200 ये कैसे आया मैं एक बार जानना चाहूंगा। बेटा स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी, स्टॉप राइटिंग Yes, sir. and tell me one thing. Some of the students has found out the 2290. दीपक सिंह अपना माइक ऑन करिए आप। सर प्लस करके क्या कितनी बार आपने प्लस किया था, क्या प्लस किया था? दीपक सिंह माइक ऑन करिए, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा, मैं ऐसा आदमी हूँ। आप जानबूझ के अगर माइक बंद करेंगे तो मैं तुम्हें बाहर ही कर दूंगा। माइक ऑन करिए पहले, जो मैं पूछूं जब तक मैं ना कहूं तब तक आप माइक बंद मत करिएगा। दीपक सिंह माइक ऑन करिए। क्या क्या प्लस किया था जो 2290 आया, ये बताइए। सर 458 प्लस करके 5 टाइम्स सर 2219। आपके बुक में कितने हैंड की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है? बुक में आपको कितने हैंड की कॉस्ट फाइंड आउट करना है? पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, कितना हैंड दिया गया है? हाउ मेनी हैंड दे परचेज? दीपक सिंह, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, योर आंसर इज इनकरेक्ट, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। तो आप जो मैं पूछूं ध्यान से सुनिए और मुझे आंसर दीजिए तुरंत। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में कितने क्वेश्चन रिजवान एंड कैरी ने मिलकर के कितने हैंड्स बाय किए, कितने हैंड्स खरीदे? सर 355 प्लस नैना बारी आप भी बताइए, आपका भी तो रॉन्ग है कि दीपक सिंह का आपने देख के करके छाप लिया था। नैना बारी माइक ऑन करिए। दीपक सिंह अपना बेटा, आपके यहाँ से इतना शोर हो रहा है, आप अपना माइक बंद करो, आपको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ शोर हो रहा है। मैं सिर्फ आप ही का गलत है, आपका और नैना बारी 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चों ने सही किया है। बाकी जिन्होंने कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लाई करने में भी गलती हो गई है उनसे, बाकी लोगों का कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन आप दोनों ने तो गलती कर दिया पूरी तरीके से। आपके यहाँ से आवाज आ रही बेटा, घर वालों को शांत करिए या तो आप क्लास छोड़ दीजिए। आप वीडियो बाद में देख लेना अगर ऐसे ही होता रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है, रिजवान एंड कैरी ने 15 हैंड्स खरीदे, तो एक हैंड की कॉस्ट ये है, तो इसको 15 हैंड की कॉस्ट क्या होगी? ये पहले हैंड की, सेकंड हैंड, तीसरा हैंड, चौथा, पांचवा, सभी हैंड के लिए 458 रुपीज देने पड़ेंगे ना। तो 15 हैंड के लिए 15 को 458 देना पड़ेगा। तो 458 को 15 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना 15 से। तो 458 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है? 15 8 जा डायरेक्टली 15 का टेबल आप सभी को आता ही है। यस सर 15 का टेबल तो आता ही है। 15 8 जा 15 8 जा 120. 120 के सिर्फ एक ही डिजिट तो लिखेंगे, 0, जो वंस वाली डिजिट है। तो 120 के 0 कितना कैरी गया? ये 12 will be carry forwarded to the next place. 15 75. जो 12 कैरी आया था वो 75 में ऐड भी तो होगा, तो 75 प्लस 12 इक्वल टू 87. 87. तो 87 के सिर्फ आपका एक ही डिजिट यही तो लिखा जाएगा, तो ये लिख देते हैं। आपका Yes, sir. कैरी जा रहा है, 8 जा रहा है। 8. तो 15 हो जा 60 में जो 8 कैरी आया था उसको भी ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 60. दिस इज द टोटल कॉस्ट। दिस इज द
टोटल कॉस्ट ऑफ द 15 हैंड्स। लोगों ने कुछ और आंसर भी निकाले हैं। Yes, sir. बेटा ये तो रहा कि कैसे आप फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है, मैं हमेशा कहा हूं आपको वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपने क्या किया है, 15 को 458 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, फिर यहाँ पे आंसर आया था। ये 458 क्या है, ये तो लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। व्हाट इज दिस, 458 क्या है, टेल मी 458 क्या है, कैन एनीबॉडी कैन टेल, बताइए। Sir, sir, हाँ, cost बताइए of one hand. ऑफ वन हैंड, इट इज द कॉस्ट ऑफ वन हैंड। ये दिया है या अपनी मर्जी से आपने बताया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है या अपनी मर्जी से आप लोग बता दिया रहे हैं? गया है। तो क्या Sir, लिखना दिया है? गया. दिया गया. as given the cost of one hand is equal to 458। ये तो आंसर आया था। तो 458 क्या है, इसे आप as given the cost of one hand is equal to 458 and what is this, what is 15? Tell me that what is 15, बताइए। सर नंबर ऑफ हैंड्स। ये नंबर ऑफ हैंड, ये कौन से नंबर ऑफ हैंड है? Sir, hands that Rejuan. Number Sir, of hands hands? that Rejuan and Kyrie want to buy. ये कौन से नंबर ऑफ हैंड है? रिजवान एंड कैरी डिसाइड टू बाय। ये कौन से नंबर ऑफ हैंड है? ये नंबर ऑफ हैंड है, ये नंबर ऑफ हैंड ही है, लेकिन कौन सा नंबर ऑफ हैंड है जो रिजवान या कैरी मिल करके खरीदने के लिए डिसाइड करते हैं। तो क्या है, 15 नंबर ऑफ हैंड है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना यस सर। नंबर ऑफ हैंड्स। ये कौन से नंबर ऑफ हैंड्स, कॉमा लगा के वो भी लिख दीजिए। दे डिसाइड टू बाय, दे मतलब वे रिजवान एंड कैरी दोनों आ गए, आपकी बुक में भी दे लिखा है। आप चाहे तो रिजवान एंड कैरी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दे डिसाइड by is equal to 15 number of hands they decided to buy, they decide to buy। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मच मनी विल दे स्पेंड, मनी आपको बताना है। क्या बताना है? मनी मनी या टोटल अमाउंट फॉर 15 हैंड्स। किस चीज की मनी बताना है? टोटल अमाउंट ऑफ हैंड। किस चीज का, हैंड की या 15 हैंड का? Amount of hands. सर 15 हैंड का जो आप है। तो फिर जो ये आएगा ये क्या रहेगा, जो ये आंसर आएगा क्या होगा, दिस विल बी द अमाउंट। किस चीज का टोटल अमाउंट? ऑफ 15 हैंड्स। तो आपको यही चीजें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। सो अब इन दोनों का आप यूज करेंगे तभी ना। सो इस अतः या 10 या आप 100 लिख लीजिए। सो मतलब इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ हैंड 15 हैंड्स। ऐसा कर सकते हैं ना, जो आपके क्वेश्चन में दिया है उसी से ही हम ये स्टेटमेंट, लास्ट वाला स्टेटमेंट उसी को ही बनाने का आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। उसको ध्यान रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन में रहेगा जो पूछा जाएगा उसी में से लिखना भी आप लोग सीख जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको पढ़ते हैं एक बार। हाउ मच मनी, हाउ मच मतलब कितने सारे, हाउ मेनी कितने मतलब सारे पैसे। तो हाउ मेनी या हाउ मच में टोटल अमाउंट या टोटल नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है। अगर पैसे की बात हो रही है तो अमाउंट, अगर किसी मात्रा की बात किया जा रहा है जैसे आपका कोई लीटर है या रुपीस की बात करें तो वहां पे आप अमाउंट कर सकते हैं। लेकिन जब किसी चीजों की संख्या की बात किया जा रहा है तो टोटल नंबर आप लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ या टोटल अमाउंट ऑफ। ये किसकी जगह पे लिखेंगे, हाउ मेनी की जगह या हाउ मच की जगह। ओके,
Yes, sir. तो Yes, sir. हाउ मच की जगह मैंने क्या लिख दिया, टोटल अमाउंट ऑफ, क्योंकि ये पैसे की बातें हो रही है। अगर किसी संख्या पूछा गया होता तो टोटल नंबर ऑफ लिखते, तो हाउ मच के यहाँ पे क्या लिख दिया, टोटल अमाउंट ऑफ। उसके बाद जितना भी लिखा है, हाउ मच या हाउ मेनी के बाद जितना भी लिखा है वही सारा लिख देना है, ठीक है। हाउ मच या हाउ मेनी कभी भी Yes, आप sir. तो हाउ मच Yes, या sir. उसमें नंबर, टोटल नंबर ऑफ या टोटल अमाउंट ऑफ आपने लिखा। अब टोटल अमाउंट ऑफ क्या लिखना है, हाउ मच के बाद जो लिखा है सारा लिख डालो। टोटल अमाउंट ऑफ मनी 40 तक वैसे लिखते क्या लिखना है बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ। 15. आप पहले Okay. लिखिए 15। जो मैं समझा रहा हूं, जिस लाइन से मैं ये लाइन बनाने के लिए बोल रहा हूं, हमने कहा जो क्वेश्चन पूछा जाए ये लाइन कैसे लिखेंगे, उसमें लिखा है हाउ मच या हाउ मेनी, तो हाउ मच या हाउ मेनी की जहां पे लिख दीजिए टोटल अमाउंट ऑफ या टोटल नंबर ऑफ। उसके बाद हाउ मच या हाउ मेनी के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सारा कॉपी कर दो। 90% क्वेश्चंस में आपको ये सेंटेंस आसानी से फ्रेम हो जाएगा। तो क्या है, हाउ मच या हाउ मेनी के बाद क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, हाउ मच मनी विल दे स्पेंड। तो हाउ मच के यहां लिख दिया है टोटल अमाउंट ऑफ, मतलब मनी दे विल स्पेंड, मनी They will spend. दे विल, They will spend. ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये पूछा गया है टोटल अमाउंट वो लोग कितना खर्चा करेंगे, ये नहीं पूछा गया है 15 की कॉस्ट क्या होगी। बात अलग है, दोनों एक चीज है, लेकिन यहाँ पे जो पूछने का तरीका है, ये पूछा जा रहा है कि दोनों कितना अमाउंट खर्चा करेंगे। टोटल हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट, हाउ मच मनी दे विल स्पेंड, टोटल अमाउंट ऑफ मनी दे विल स्पेंड। क्या होगा इसमें, 458 इंटू 15। इसका आप लोगों ने आंसर निकाला ही है, यही तो आंसर आएगा। Yes, sir. You all need Yes, to sir. write the answer in this way. Yes, sir. You all need to write the answer in this way। और ऐसा ना होने पाए जैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन में आप लोगों ने Yes, छोड़ sir. दिया था एक क्वेश्चन। जब मैं मिलूंगा कभी तो Yes, sir. मैं कॉपी आपके निकलवा के, हाँ सारे बच्चे ध्यान से सुने, एक एक क्वेश्चन मैं देखूंगा कॉपी निकलवा के, आपको समझ में ना आए रिकॉर्डिंग आप ओपन करिए, आपको पूरा सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ सब कुछ आपको प्रॉपर दिखेगा। आप दोबारा देख लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, बट यू हैव टू सॉल्व द आंसर एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कर ले जाएंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, लोग sir. यस सर सुनते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, वो बच्चों की बातें सुनते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरी बात ना सुन करके जब कोई दूसरा बच्चा बोलता है यस सर तो वो भी बोलता है यस सर। तो उसने अच्छा सर ने कुछ पूछा, बच्चे ने यस सर बोला तो मैं भी बोल दे रहा हूँ यस सर। अरे जब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो तुरंत आप स्वयं बोलिए यस या नो, और अगर नहीं आप सुन रहे हैं तो दूसरे का देखी देखा मत बोलिए। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, माइक ऑन रखिए और स्वयं रिस्पॉन्ड करिए। अगर आप यहाँ शोर ना हो तो माइक ऑन रखें। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन। शिवांगी त्रिपाठी जरा पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। If one hen lays 4 eggs in a week, how many eggs will it lay in 28 days? Assume that the hen lays the same number of eggs each week. Okay, what you all can do in the question number second, the question is if means अगर या यदि कुछ भी आप बोल दें। If one hen lays 4 eggs in a week, जो एक hen है वो 4 अंडे देती है। अगर एक hen 4 अंडे देती है तो 15 hen से एक वीक में कितना अंडे देंगी ये पहले आपको जानना है। Because they have how many hens they have bought? 15, sir. टोटल 15 hens उन लोगों ने खरीदा है। Yes, 15 sir. hens खरीदा है। एक hen कितने अंडे देती है एक वीक में? How many eggs lays 28. one hen? The 4 The 4. एक hen
एक हैन 4 अंडे देती है ना, यस सर। तो मैं पूछूं वही आंसर दिया करो, डायरेक्टली दूसरा आंसर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बातें सुना करिए, जो मैं पूछूं बस उतना ही आंसर दिया करिए। कोई 20 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैं अभी कुछ पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ एक हैन कितने अंडे देती है एक सप्ताह में, 1 वीक में? सर 4। टोटल कितने हैंस लोगों ने खरीदे थे? रिजवान एंड कैरी? 15. जब एक हैंड 4 एग देती है, 15. 1 हैंड लेज ओनली 4 eggs in a week, then in a week, तब एक ही सप्ताह में या एक सप्ताह में छोड़ दीजिए, एक हैंड एक सप्ताह में 4 eggs देती है, तो वही एक हैंड एक सप्ताह में 4 egg देती है, तो यही एक हैंड 4 सप्ताह में कितने अंडे देगी 4 वीक्स में? Sir, 60. देखो एक ही हैंड इन 1 वीक, 1 हैंड इन 1 वीक 4 eggs, एक ही हैंड इन 4 weeks, हाउ मेनी eggs? आपको हर वीक में 4 अंडे देती है, तो 4 वीक में कितने अंडे देगी? Sir, 16. 16. सेकेंड वीक में भी 4 eggs, थर्ड वीक में भी 4 eggs, फोर्थ वीक में भी 4 eggs, तो यानी 4 आपको 4 बार देगी चारों सप्ताह में। तो 4 प्लस करने के बजाय 4 into 4 कर लीजिए, क्या आएगा? 4 into 4 eggs ऑन इन 4 वीक्स इक्वल टू 16 eggs। ये 16 eggs कौन देगा? ओनली 1 हैंड, लेकिन लोगों ने यस सर। खरीदे थे 15 हैंड, तो 15 हैंड खरीदे थे, तो 15 हैंड इक्वल टू कितना होगा? 15 हैंड 4 वीक्स में ही, 4 वीक्स में कितने अंडे देगी? 1 हैंड 16 देती है 4 वीक्स में। Sir, 240. सर 240। 15 सब भूल गए हैं, वो 20 बोल रहा है, कोई 15। जब 1 हैंड आपको 28 4 वीक में 16 eggs देती है, तो 2 हैंड क्या करेगी? वो भी तो सेम नंबर ऑफ eggs देगी ना, अज्यूम करने के लिए बोला भी गया है। एक हैंड और होती तो 16 नहीं, तो 16 + 16 32 eggs हो जाती, इन 2 नहीं 15 ही हैंड है, 1 2 3 4 5 नहीं है, ये टोटल 15 हैंड्स हैं। तो 15 हैंड्स विल बी लेइंग हाउ मेनी eggs? ये 15 नंबर ऑफ हैंड्स इनटू नहीं, ये आपका 16 eggs है, 16 eggs जो 16 eggs देती है वो एक हैंड देती है। 15 egg कितना, 15 हैंड्स कितना देंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो आएगा यही आपका आंसर होगा। ओके, अब बेटा लेकिन लिखना Yes, sir. क्योंकि ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गिव योर आंसर इन प्रॉपर वे, तभी आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी। अब जो इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या दिया है सबसे पहले? एज गिवन या Yes, गिवन? sir. क्या दिया है? 1 हैंड लेज 4 eggs, नंबर ऑफ, ये 4 क्या है? नंबर ऑफ eggs। Yes, sir. Yes, sir. Number of eggs, एक बाई 1 हैंड इक्वल टू 4 eggs इन अ वीक। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, आप लोग कैसे लिखोगे? आप पहले एक सप्ताह का निकालेंगे, फिर इसी तरह 4 वीक का निकालेंगे, फिर आपको क्या होगा? 15। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक 3 ही लाइन का होगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू ऑल, ऐसे आपने लिख दिया नंबर ऑफ eggs लेड बाय 1 हैंड इन अ वीक, टोटल कितना होगा? 4 eggs। तो फिर आपको क्या होगा? नंबर ऑफ eggs, सेम आप लिखेंगे यही सारी चीजें,
laid by how many hands? 15 hands in a week. In a week, यहाँ पे in भी लिखना था, यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूं a. In a week कितना होगा? 4 into 5. एक सप्ताह में एक हैंड 4x देती है, तो 15 हैंड कितने देंगे? 15 into 4 equal to 60. फिर Yes, sir. नंबर ऑफ x laid by 15 hands in 1 week, नहीं, in 4 week. तो एक वीक में जब इतना होता है तो 4 वीक में क्या होगा? 60 into 4 कितना आ जाएगा? 200. 240. 40. ये हमारा Sir, आंसर। 240. इसी लाइन को क्या करेंगे? इसको ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एक्स लेड बाय वन हैंड इन अ वीक, एक सप्ताह में एक हैंड द्वारा कितने अंडे दिए गए? तो उसी एक सप्ताह में, इन अ वीक ही है, एक सप्ताह में 15 हैंड मिलकर के कितने देंगे? आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो एक हैंड एक सप्ताह में कितना दिया, फिर एक 4 सप्ताह में कितना दिया, इतना निकाल के फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इधर से भी कर सकते हैं। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सी, अंकित जरा बेटा आप जरा पढ़िए, अंकित क्वेश्चन नंबर सी पढ़िए। How many eggs will 15 hens lay in 28 days? फिर से क्या पढ़िए? How many eggs will 15 hens lay in 28 days? ये तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया ना। Yes, sir. बेटा क्वेश्चन नंबर बी में आपको 15 हैंड्स में, क्वेश्चन नंबर बी ध्यान से नहीं पढ़ा गया। क्वेश्चन नंबर बी में क्या था? क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया था इफ वन हैंड लेज 4x इन अ वीक। पहले भी सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इफ वन हैंड लेज 4x इन अ वीक, अगर एक हैंड है वो एक सप्ताह में 4x ले करती है, 4 अंडे देती है, तो 28 दिन में कितने अंडे देगी? वही एक ही हैंड की बात की जा रही है। तो वन हैंड विल लेज हाउ मेनी एग्स इन 28 डेज। तो एक जब वन वीक में केवल 4 अंडे देती है, तो 4 वीक्स में 28 में तो 4 वीक्स ही तो होंगे। क्या होगा? 4 हो जा 16 Yes, एक्स। sir. और जो क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी अभी मैंने बताया, एक अंडे पूछा गया हाउ मेनी एग्स विल 15 हैंड्स ले इन 28 डेज। अब आपको पता है वन हैंड्स विल lay 16 eggs in 28 days, then how many eggs 15 hens will lay? 15 into जो भी एक हैंड 28 डेज में जितना भी ले करती है, जितना भी अंडे देती है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। लेकिन ध्यान देना, आप Yes, sir. तो Yes, sir. 16 को 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा। 16 क्या है? 16 क्या है? 16 जब आप क्वेश्चन नंबर सी का जब आप आंसर निकालेंगे तो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 क्या रहेगा? कोई बता सकता है? सर एक बार फिर से बोलिए। Number, चलिए ठीक है, भूल गए, मुझे पता है। sir, हाँ बताइए बेटा। sir, number of eggs one hen lays. अब इन्हें जमाई ले रहे हैं, नींद आ रही है। नो सर। चलिए 16 क्या है? नंबर ऑफ एक्स है। ये कौन सा नंबर ऑफ एक्स है? जब एक हैंड 28 डेज में देती है, ये 16 क्या है? एक हैंड 16 डेज में देती है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज, जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने सॉल्व किया है ऑलरेडी। क्या सॉल्व किया था? एज वन हैंड लेज number of eggs, add number of eggs laid by the one hen in a 28 days equal to 16. So number of eggs laid by one hen नहीं, 15 hens in 28, तो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ eggs। क्वेश्चन नंबर सी भी हो जाएगा ना? यस
Yes, sir. Yes, sir. Number D. If Rizwan and Carrie sell one egg for 6 rupees, जो रिजवान और कैरी है वो 1 egg सेल करते हैं तो कितना पैसा पाते हैं? 6 rupees. Then how much will they earn after selling the eggs laid by the 15 hens in 28 days? So then how much, कितने सारे बिल दे अर्न, यानी कितने सारे मनी की बात किया जा रहा है. तो आप क्या बोलेंगे? टोटल अमाउंट है, टोटल मनी दे विल अर्न. तो हाउ मच बिल दे, वहां पे क्या करेंगे? हाउ मच बिल दे या हाउ मच बिल के जहां पे आप लिखेंगे टोटल मनी या टोटल अमाउंट. टोटल हाउ मच या हाउ मेनी के जहां पे लिखेंगे आप इसको लास्ट में. टोटल अमाउंट है टोटल मनी दे विल अर्न आफ्टर सेलिंग द एग्स लेड बाय द 15 hens in 28 is equal to 28 डेज में 15 hens ने जितना भी एक्स दिया है, कितना एक्स दिया है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आपको आ जाएगा ना. 1 hen की कॉस्ट इसमें बताया Yes, गया. sir. The cost of 1 hen is equal to the cost of 1 hen, the cost of 1 egg. The cost of 1 egg is equal to how much? 6 rupees. So 6 rupees. total cost of the egg. So total cost, या आप ऐसा लिख सकते हैं. So total money they will earn after selling the eggs made by the 15 hens in 15 hens in 28 days में जितना एक्स दिया है आपने निकाला होगा क्वेश्चन नंबर सी में, उसी से 6 रुपीज को मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा. नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा. आप लोग करिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 Yes, आपको, sir. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 3 ही मैं होमवर्क दे रहा हूं.